Hello everyone. Let's continue with the chapter 13 surface areas and volumes of class 9th. Learning outcomes. After watching this video, you all will be able to apply the formula for volume of right circular cone. Now let's understand the formula for volume of cone, how it had come into existence. Suppose we have a cylinder and we have a cone in such a way so that the radius of base of cone as well as cylinder are same and the height of cone as well as cylinder are same. Now you all know that the volume of right circular cylinder is pi r square h. We have done few questions based on this formula of this chapter only. Now let's understand how the formula for volume of cone had come into existence. Suppose we have an empty cylinder, right? And we have a cone which is filled with color. Now let's pour this color into the cylinder, right? So you can see that still the part of cylinder is empty. Let's take another cone. It is completely filled with another color. Let's pour this color into the cylinder. Now just see, again we have few space left in the cylinder. So take another cone. It is filled with a color. Let's pour this color into the cylinder. Now you observe that now the cylinder is completely filled. I have used three colors so that you can understand that we have to pour water or color three times into the cylinder to completely fill it. So can we say that volume of right circular cylinder is three times the volume of cone, because we have to pour the liquid three times to completely fill this cylinder. So in other words, we can say the volume of cone is 1/3 the volume of cylinder. So the volume of right circular cone is 1/3 the volume of cylinder, right? This is possible. This is a formula when we have a cone and cylinder having the same base radius and having the same height. So let's begin with exercise 13.7. Today we will do questions which are based on formula for volume of right circular cone. Exercise 13.7. Let's begin. Question number 1. Find the volume of right circular cone with radius 6 cm and height 7 cm. Suppose this is 6 cm and this is height is 7 cm. Now we have to find out the volume. Let's do first part. Radius is equals to 6 cm and its height is 7 cm. Now we have to find out the volume. So I hope अभी तक आपको formula पता लग ही गया होगा. Volume of right circular cone is equals to 1/3 pi r square h. So 1/3, the value of pi is 22/7, r square that is 6 into 6 and h is 7. Now let's do the simplification. 7 and the 7 are cancelled out. 3 2s are 6. Now we have to multiply 22, 6 and 2. It is 264 centimeter cube. Now the first part I have done. I hope you have understood. So do second part yourself. I am doing here. You can pause the video and do this second part yourself. Let's see, are you able to do it? So radius is, I hope you are doing it second part yourself, and height is 12 centimeter. Volume is 1/3. आप पूरा लिखना volume of right circular cone, right? So 1/3, the value of pi is 22/7, r square that is 3.5 into 3.5 and h is 12. Now let's do the simplification. 3
4s are 12. Let's remove this decimal. 7 5s are 35, 5 1s are 5 2s are 2, and this are cancelled out. So we have 11 into 3.5 into 4. बेटे आप डेसिमल अगर आपने हटा के सिंप्लीफाई करना है आप करो, अदरवाइज आप चाहो तो आप फ्रैक्शन में आंसर दे सकते हो या आप डेसिमल में आंसर दे सकते हो. So on multiplying these we get 154 centimeter cube. Let's do next question. Question number 2. Find the capacity in liters, right, of conical vessel with radius 7 centimeter and slant height 25 centimeter. Now in first part it is given that the radius is 7 centimeter and the slant height. Now this is the slant height. Sorry, थोड़ा सा लाइन सेगमेंट ये टेढ़ी हो गई. ये जो है this is slant height. Now this slant height is given as 25 centimeter. अब हमें निकालनी है वॉल्यूम. कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम. अब वॉल्यूम का अगर फॉर्मूला आपको याद हो, इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब एच इज दिस. अब हाइट बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन में दी नहीं हुई, तो हमारे पास स्लांट हाइट है, रेडियस है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग हाइट निकाल सकते हैं. तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग निकालते हैं हाइट. पहले ये डिफाइन कर लें. रेडियस इक्वल टू आर 7 सेंटीमीटर. स्लांट हाइट को आपको याद ही होगा, अल्फाबेट एल से हम लोग डिनोट करते हैं. स्लांट हाइट इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. हम लोगों ने सबसे पहले निकालनी है हाइट, उसके बाद जाके हम लोग निकालेंगे कैपेसिटी इन लीटर्स. ठीक है, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, कैपेसिटी हमने निकालनी है इन लीटर्स. चलिए अब हम सबसे पहले ये रिलेशन लिखते हैं. स्लांट हाइट इक्वल टू एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. वैल्यूज डालते हैं. एल दैट इज यहाँ पे 25 गिवन है, आर की वैल्यू इज 7 स्क्वायर, एच इज अननोन. स्क्वायर ऑफ 25 is 625 is equals to 49 plus h square. So 625 minus 49 equal to h square. This is 576 and 576 is square of 24. So in other words we got the height as 24 सेंटीमीटर. अब बेटे हाइट निकल गई है, अब हम लोग निकालेंगे इसकी वॉल्यूम. Volume of the vessel is equals to, since it is conical, so 1/3 pi r square h. 1/3 pi की वैल्यू 22/7, r यहाँ पर है 7, स्क्वायर है तो 7 into 7, h is 24. ठीक है, चलिए अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं. 3 8s are 24, 7 and this 7 are cancelled out. So we have 22 into 7 into 8. तो चलिए अब इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. और मल्टीप्लाइंग दीज थ्री वी गेट 1232 सेंटीमीटर क्यूब. अब आपको आई होप ये कन्वर्जन बेटे याद होगा. 1000 सेंटीमीटर क्यूब मेक्स 1 लीटर. अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल है, तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू, हम लोग यूनिटरी मेथड बेटे यहाँ पे लगा रहे हैं, लीटर. सो दिस इज इक्वल्स टू 1.232 liters. So capacity of this conical vessel in liters is 1.232. अब आप लोग सेकेंड पार्ट एग्जैक्टली सेम वे में आप अपने आप करोगे. आई एम नॉट सॉल्विंग सेकेंड पार्ट हेयर, राइट. सो टेक दिस सेकेंड पार्ट एज योर होमवर्क. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, यू कैन राइट इन कॉमेंट. आई विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू, और अदरवाइज आई विल ट्राई टू मेक video for part 2 and share it with you. Now let's begin with next question. Question number 3 is, the height of a cone is 15 centimeter. Now this is 15 centimeter. This is the height of the cone. If its volume is 1570 centimeter cube. Volume यहाँ पर given है 1570 centimeter cube. Find the radius of the base. This is the radius of the base. This we have to find out, right? And the value of pi is given as 3.14. चलिए अब सबसे पहले हम लोग ये लिख दें. हाइट इसकी है, हाइट इक्वल टू h इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. रेडियस हम लोगों ने निकालना है. अब हमारे पास अगर वॉल्यूम हमें पता है, इजीली वी कैन फाइंड द रेडियस. लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन.
तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. दिस इज 1570. 1/3 पाई की वैल्यू बेटे 3.14 है, तो आपने यही सब्स्टिट्यूट करनी है. आर स्क्वायर एज इट इज रहने दो, हाइट इज 15. चलिए अब सारी वैल्यूज को, सारे नंबर्स को इस तरफ लेके आते हैं. 1/3 इधर आके 3/1 हो गया. 3.14 डिनोमिनेटर में आ जाएगा and 15 again it will come in the denominator. R square will remain like this. चलिए अब यहाँ से डेसिमल हटाते हैं, ऊपर आ गया 100. अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखो कि इसको हम थोड़ा सा और इजी वे में सिंप्लीफिकेशन अपनी कैसे कर सकते हैं. सो दिस इज 314 into 1 into 15. बेटे आपको आई थिंक अभी तक ये याद हो गया होगा. 157 ट्वाइस इज 314. ठीक है. अब यहाँ पर 3 1s are 3 5s are 15, 5 2s are 10, 2 and 2 1s are 2. सो अब हमारे पास सिर्फ बचा यहाँ पर 100. अब ये r स्क्वायर है तो 100 को वी कैन राइट 10 स्क्वायर बिकॉज 100 इज अ स्क्वायर ऑफ दिस. और यू कैन राइट, आप चाहो तो आप इसको बेशक ऐसे करके लिख लेना, दैट्स योर विश. मैं इसको थोड़ा सा स्क्वायर अच्छे ढंग से लिख दूं. So this is 10 square. So it means r is equals to 10 centimeters. So therefore radius is equals to 10 centimeter. Right? Now let's do next question. Question number 4 is if the volume of a right circular cone of height 9 centimeter. इसकी height given है 9 centimeter. इसकी वॉल्यूम गिवन है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब. अब बेटे कभी भी पाई में गिवन हो सो लीव आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई ओनली. आपको पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है. वॉल्यूम ऑफ कोन इज गिवन एज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज गिवन एज 9 सेंटीमीटर. ठीक है. वी हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द बेस. डायमीटर हम लोगों ने निकालना है. डायमीटर रेडियस का डबल होता है, सो इट मींस वी फर्स्ट हैव टू फाइंड आउट द रेडियस. चलिए लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. कोन की वॉल्यूम गिवन है 48 पाई. ठीक है. सो 1/3 इधर भी हम लोग पाई की जगह पाई रहने देंगे. आर स्क्वायर निकालना है, h is given as 9. चलिए अब सारी टर्म्स को लेके जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर. 3 ऊपर आ गया, पाई एंड 9 विल कम इन द डिनोमिनेटर. चलिए अब कैंसिलेशन करें. सबसे पहले पाई कैंसिल हो गया. राइट. नाउ 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are and 16. So r square equal to 16. So r equal to square root of 16. So this is equals to 4 सेंटीमीटर. अब रेडियस आ गया तो डायमीटर आ गया. रेडियस को हम लोग कर लेते हैं ट्वाइस. डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस. सो 2 into 4 सेंटीमीटर is equal to 8 सेंटीमीटर. Question number 5. A conical pit of diameter 3.5 सेंटीमीटर. अब डायमीटर बेटे 3.5 मीटर्स है तो उसका जो रेडियस हो जाएगा वो उसका हाफ हो जाएगा. पिट मतलब एक गड्ढा किया गया है. ठीक है. इज 12 मीटर डीप. तो उसकी जो डेप्थ है इट इज 12 मीटर. चाहे इसको आप डेप्थ लिखो चाहे आप इसको एच करो, दैट इज योर विश. नाउ व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स. कैपेसिटी मींस हम लोगों ने वॉल्यूम निकालना है और किस यूनिट में निकालना है, किलोलीटर्स में. चलिए करते हैं क्वेश्चन. डायमीटर गिवन है 3.5 मीटर, तो रेडियस हो गया इसका हाफ. रेडियस इक्वल टू 3.5 by 2 मीटर. आपने इसको सिंप्लीफाई यहाँ करना है, यहाँ करो. अदरवाइज जब हमने फॉर्मूला लगाना है आपने वहां करना है, वैसे आप कर सकते हो. ठीक है. अब इसकी डेप्थ कितनी गिवन है, 12 मीटर. तो डेप्थ को हम लोग h ले लेते हैं. दिस इज 12 मीटर. सो लेट्स फाइंड द कैपेसिटी. सबसे पहले कैपेसिटी इन किलोलीटर्स वी हैव टू फाइंड आउट. सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला. Volume of cone is equal to 1/3 pi r square h. Volume of
कोन is equal to 1/3, पाई की जगह 22/7, r square 3.5 by 2 into 3.5 by 2 and h is 12. अब बेटा इसके बाद हम लोग करेंगे सिंप्लीफिकेशन. नाउ आई रिमूव दिस डेसिमल. ये डेसिमल हटा, नीचे आ गया 10. ये डेसिमल हटा, नीचे आ गया 10. चलिए अब कैंसिलेशन करते हैं. 7 1s are 7, 7 5s are 35. Then 5 1s are 5, 5 2s are 10. 2 and this 11 are cancelled out. Then 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 3s are 6. This 3 1s are and 3 1s are. अब बेटा यहाँ पर आपको एक चीज मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे देखिए एक 11 बचा, एक यहाँ पे 35 रह गया और डिनोमिनेटर में रह गया 10. अब अगर हम लोग यहाँ पर इन केस अगर इसको हम लोग कैंसिल करते हैं 5 7s are and 5 2s are, तो ये 2 पूरा पूरा कैंसिल नहीं होता, तो आपको मिलेगा 77/2. डेसिमल में करोगे तो इट विल बी 38.5 मीटर क्यूब. ठीक है. अब अगर हम लोग आई वाज जस्ट चेंज इसका, अगर मान लो हम यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं करते हैं तो आई कैन राइट 11 into 35/10. 11 और 35 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी 385/10. सो 385/10 इज 38.5 मीटर क्यूब. तो आपने इसको जैसे करना है, जैसे आपको इजी लगे आप कर सकते हो. आपने मतलब कैंसिल करके डेसिमल लगाना है या स्ट्रेट वे. प्रेफर हम लोग करते हैं अगर डिनोमिनेटर में 10 100 1000 है, अगर वो पूरे पूरे कैंसिल नहीं होता ना, लीव इट लाइक दैट. चलिए अब हम लोग निकालते हैं इसकी वॉल्यूम किलोलीटर्स में. 1 meter cube equal to 1 kiloliter. So 38.5 meter cube is equals to 38.5 kiloliters. So therefore capacity is 38.5 kiloliters. Now question number 6 is the volume of a right circular cone is 9856 centimeter cube. चलो ये लिख लें हम लोग. Volume of cone is equals to 9856 centimeter cube. If the diameter of the base is 28 centimeter, अगर बेटा diameter 28 centimeter है तो रेडियस कितना हो जाएगा? इसका हाफ. तो रेडियस हो जाएगा 28 का हाफ, that is 14 centimeter. So radius हमें मिल गया 14 centimeter. First part में है बेटा we have to find out the height of the cone. First part height निकालनी है, right? And in second part, अभी second part हम लोग बाद में करते हैं. सबसे पहले हम volume के फॉर्मूले से height निकालते हैं. One step at a time. Volume of cone. We are doing first part. Volume of cone is equal to 1/3 pi r square h. Volume of cone is given as 9856. 1/3 pi की वैल्यू 22/7. Radius is given as 14. R square है तो we'll write 14 twice. Height हम लोगों ने निकालनी है. So let's take all the terms on the left hand side. So it will be 22 into 14 into 14 equal to h. अब इसके बाद हमने करनी है कैंसिलेशन. 7 1s are 7 2s are 2 1s are 2 1s are. ये आ गया. इसको फर्दर 2 से चलिए कर लेते हैं. 7 2s are, ये आया. ये 11 से कैंसिल होता है. काफी लंबी कैंसिलेशन हो गई. सो 16. अगर इसकी कैंसिलेशन आप देख लेना, किसी बड़े नंबर से डायरेक्ट करना है तो आप कर लेना, जैसे आपको इजी लगे. कैंसिलेशन आप लोग हमेशा खुद ही किया करिए. तो h आ गया. ये 16 यहाँ पे बचा और ये 3 बचा. सो h इक्वल टू 16 into 3 48 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर. नाउ फर्स्ट पार्ट इज डन. चलिए अब करते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में बेटे हमें निकालनी है स्लांट हाइट. ठीक है. सो लेट्स डू सेकेंड पार्ट.
स्लांट हाइट हम लोगों ने निकालनी है। स्लांट हाइट को अल्फाबेट L से डिनोट करते हैं। आपको ये फॉर्मूला याद होगा, L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, बिकॉज दिस इज स्लांट हाइट, दिस इज स्लांट हाइट। और वर्टिकल हाइट हम लोगों ने निकाल ली है, दिस इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर, दिस इज हाइट। चलो अब वैल्यूज डालते हैं। R की वैल्यू हमें गिवन है 14, so this is 14, H is 48 square. Square of 14 is 196 and square of 48 is 2304, 2304. इनको ऐड करने पे will get 2500, right? This is L square, तो L क्या हो जाएगा? Square root of 2500. So this is equals to 50 centimeter. तो अब slant height आ गई, so therefore slant height is equal to 50 centimeter. Now the second part is also done. Now we will do the third part. Third part में बेटे हम लोगों को निकालना है curved surface area. Third part is curved surface area. Curved surface area of cone is pi r l. ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें 14 गिवन है, स्लांट हाइट अभी हम लोगों ने 50 निकाली है। ठीक है, तो चलिए अब इन सबको यहाँ पे कैंसिलेशन कर ले। 7 1s are 7 2s are, now 2 into 50 is 100, 100 into 22 is 2200 centimeter square, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया है। नाउ वी हैव डन ऑल द 3 पार्ट्स। ठीक है, हाइट आ गई 48 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट आ गई 50 सेंटीमीटर and curved surface area is 2200 centimeter square. Question number 7th is a right triangle ABC with sides 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter is revolved about the side 12 centimeter. इसका मतलब बेटा ये है कि जब ये जैसे suppose it's a right triangle and the sides are A, naming इसकी ABC, it is revolved about the side 12 centimeter. So it means कि हमने इस साइड को, ये जो 12 सेंटीमीटर है, इसको फिक्स करके इसको रिवॉल्व करना है। 13 सेंटीमीटर इन तीनों नंबर्स में सबसे बड़ा है एंड द लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, तो जो हाइपोटेन्यूज हो गया वो हो गया 13 सेंटीमीटर। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 5 सेंटीमीटर, सो इट वी विल राइट इट लाइक दिस। अब अगर यहाँ पर जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना बेटा, उसके अंदर लिखा है रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, तब आप देखना हम लोग ए बी को 5 सेंटीमीटर लेंगे। जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे आपको ये चीज पता लग जाएगी। अब उन्होंने बोला है कि इट इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। ए बी को फिक्स किया, इसको जब आप रिवॉल्व करोगे यू गेट अ कोन। ठीक है, जब आपको ये कोन मिला तो 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट बन जाएगी। ठीक है, हाइट बन जाएगी इसकी 12 सेंटीमीटर और उसका रेडियस बन जाएगा, रेडियस विल बी 5 सेंटीमीटर और इसकी जो स्लांट हाइट है वो हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, स्लांट हाइट L इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। आई होप यू आर क्लियर। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन और देखो, लिखा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। उन्होंने कहीं पर भी नहीं लिखा कि आपको एक कोन मिलेगा, तो सबसे पहले आप ये लिख लो, सॉलिड ऑब्टेन्ड इज अ सॉलिड ऑब्टेन्ड is right circular cone, is right circular cone। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, इसकी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई की जगह 22/7, r स्क्वायर दैट इज 5 into 5 and its height is given as 12। अगर बुक की आप बैक साइड में बेटा उन्होंने पाई की वैल्यू नहीं डाली है, बट आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि पाई की वैल्यू डालनी है नहीं डालनी, तो बेटर है आप डाल लो, सब्स्टिट्यूट कर लो। दिस इज क्लियर, तो वी गेट 22 into 5 into 5 into 4/7 centimeter cube। now 5 5s are 25, 25 4s are 100, तो ये बन जाएगा 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप चाहते हो कि आपका आंसर बुक से मैच करे
तो आप बेशक पाई की वैल्यू नहीं डालिए। 1/3 पाई की जगह पाई रखा, so r square is 5 into 5, height is 4. So 5 5s are 25, 25 4s are 100, 100/3 pi centimeter cube. Now it depends on you कि आप लोगों ने कैसे अपना आंसर, you want to leave your answer in what way. Both are correct. In any way you can do the substitution and answer निकाल सकते हो। अब मैंने यहाँ पर एक बड़े गलती कर ली, यहाँ पे 4 की जगह, तभी मुझे लग रहा था कि आई हैव रिटन समथिंग रॉन्ग। सो h बटा 12 था, सो 5 5s are 25, 3 1s are 3, 4s are, so 100 pi, राइट। सो अगर आपने आंसर इसका ऐसे छोड़ना है ऐसे छोड़ दो, आपने ऐसे करना है ऐसे कर लो। नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8 is, if the triangle ABC in the question 7 above is revolved about the side 5 cm. आपको याद होगा पिछले वाले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 7 में साइड्स गिवन थी 5 cm, 12 cm एंड 13 cm। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज, तो सबसे पहले ये तो लिख लो आप 13 cm। अब ट्राइंगल को नेम दे देते हैं ABC। अब क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे लिखा है रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, सो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर BC विल बी 12 सेंटीमीटर। अब AB जब फिक्स हुआ, जब आपने इसको रोटेट करना है, यू गेट अ कोन। अब इस कोन में जो 5 सेंटीमीटर है वो इसकी हो गई हाइट, ठीक है, हाइट हमें मिल गई 5 सेंटीमीटर, जिसके भी अबाउट, जिसको भी फिक्स करके आप रोटेट करोगे ऑब्वियसली वो हाइट बन जाएगी उस सॉलिड की, और रेडियस बन गया 12 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट एज यूजुअल 13 सेंटीमीटर। अब अगेन इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा क्या सॉलिड क्या मिला आपको, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, सो देयरफॉर सॉलिड ऑब्टेन्ड इज कोन। ये आप लिख लो, आपको खुद को भी एक क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। सॉलिड ऑब्टेन्ड इज a right circular cone, right circular cone, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर इसके अब हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर दैट इज, यहाँ पे मैंने r लिखा नहीं, इक्वल टू r, दिस इज 12 into 12 एंड h is 5। चलिए अब कैंसिलेशन करते हैं, 3 4s are 12। अब यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या कैंसिल होता है, कुछ भी कैंसिल नहीं होता। ये हमें मिला 5280/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में आगे हमें क्या बोला गया है, find also the ratio of the volumes of the two solids obtained in question number 7 and question number 8। अब यहाँ पे भी बेटे मैं इसका अगर आप चाहो तो वॉल्यूम आपने इन टर्म्स ऑफ पाई छोड़नी है, तो वो आप कैसे कर सकते हो, 1/3 पाई की जगह पाई, r स्क्वायर दैट इज 12 into 12 एंड हाइट इज 5। तो यहाँ पर 3 and 4 these are cancelled out, तो ये आ जाएगा 4 5s are 20, 20 into 12 is 240 पाई, ठीक है। अब आपको बेटा जो वॉल्यूम की रेशियो निकालनी है, मैं जो पाई के टर्म्स में था तब के कैसे आएगा और जो आपने आंसर निकाला है उससे कैसे आएगा, मैं दोनों वेज से सिखाऊंगी। आप ना एक काम करना, जब भी आपको बेटे वॉल्यूम निकालनी हो ना, तो इजिएस्ट एंड द सिंपलेस्ट वे वो देखो आप, रेशियो है ना, रेशियो ऑफ वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। जो क्वेश्चन नंबर 7 में, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में पहले लिखा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने लिखा था 1/3 पाई, रेडियस था वहां पे 5 into 5 एंड हाइट वाज 12, राइट। यहाँ पर 1/3 into पाई क्वेश्चन नंबर 8 में रेडियस इज 12 एंड हाइट इज 5। अब इससे एक बेस्ट वे, मतलब इसका एक फायदा ऐसे लिखने का एक ही होता है बेटा, हमारी कैंसिलेशन बहुत इजी हो जाती है। 1/3 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल,
इस 5 से ये 5 कैंसिल, ये 12 से ये 12 कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ बचा 5/12, सो इट इज 5:12। ठीक है, अगर आप पाई वाली, अब ये जो पाई के टर्म्स में आंसर आया इनकी रेशियो, और जो यहाँ पर ये वाले आंसर आया इसकी रेशियो, ये आप खुद निकाल के देखो, फिर आपको जो इजी लगे आप उस वे में कर लेना। ठीक है, सो रेशियो इज 5:12। Now let's do the last question of this exercise. Now question number 9 is a heap of wheat. Heap होता है ढेर, wheat is कणक गेहूं, is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter. Diameter is given as 10.5 meters. तो radius इसका half हो जाएगा. So radius is equals to r equal to 10.5 by 2 meter. Simplify करना है यहाँ पे करिए, नहीं तो रहने दीजिए, हम लोग बाद में कर लेंगे. Height equal to h equal to 3 meter. Now first of all they are asking us to find the volume. It's a cone, so volume of cone is equal to 1/3 pi r square h. 1/3 pi r square h. So 1/3 pi की वैल्यू 22/7, r square 10.5 by 2 into 10.5 by 2 and h is 3. चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ये डेसिमल हटा 10, ये डेसिमल हटा 10. This 3 and this 3 they are cancelled out. 2 से ये कैंसिल हो गया. 7 1s are 7 5s are 5 3s are 5 2s are, then 5 2s are 10, 5 1s are 5 2s are 10. So बचा हम न्यूमरेटर में 11 into 3 into 21 and it will be 2 2s are 4 2s are 8. So we have 693 by 8 centimeter cube. अगर डेसिमल में करोगे तो इसका आंसर आएगा 86.625 सेंटीमीटर क्यूब. Now volume we had calculated. अब आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन में लिखा है द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन. आपने देखा होगा कई बार जब वीट बाहर होता है, कनक गेहूं बाहर होती है, उसको रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए उसको ढका जाता है, उसको कवर किया जाता है. तो कैनवस से जब उसको कवर करेंगे, अगर सपोज इट्स अ हीप ऑफ वीट, जब आप इसको कवर करोगे तो ऑब्वियसली इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया ही कवर होगी. सो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड. So we can write area of canvas required means area of canvas required is equal to curved surface area of cone. अब curved surface area of cone का मतलब पाई आर एल. रेडियस तो बेटे हमें पता है, हमें स्लांट हाइट नहीं पता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द स्लांट हाइट. अब स्लांट हाइट को हम लोग एल से डिनोट कर देते हैं. दिस वी हैव टू फाइंड आउट. एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. So we can say L is equals to square root of R square plus H square. R चलिए इसको अब R को यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ. 10.5 by 2 है, डेसिमल हटा नीचे 10, 5 2s are 10, 5 1s are 5 2s are 10. So 21/4. अब 21/4 को 5.25 आएगा. सो विल राइट, यहाँ पे बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, अगर आपको फ्रैक्शन से ही इजी लगती है आप कर लो, ठीक है, अदरवाइज जैसे आपको इजी लगे बेटा. 3 स्क्वायर, सो 5.25 का स्क्वायर इज 27.5625 एंड स्क्वायर ऑफ 3 इज 9. चलिए जब इनको आप ऐड करोगे 27 plus 9 is 36.5625 centimeter. Sorry, meters. This all is in meters. अब चलिए 36.5625 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं. This is nearly equal to 6.04 या 0, अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो 6.05 meters. अब this is slant height we have. चलिए अब हम लोग निकालते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया. सो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर एल. पाई इज 22/7, आर को 21/4 ही लिख लेते हैं. स्लांट हाइट इज 6.05.
7 and this are cancelled out. 2 2s are 4 this, so we have 11 into 3 into 6.05 by 2. ठीक है, चलिए बस को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखते हैं. This is equals to 199.65 by 2. अब 199.65 को अब 2 से डिवाइड करो तो आपको आंसर मिलेगा 99. मैं यहाँ पे बड़े आंसर लिख रही हूँ इज इक्वल्स टू 99.825 या आप 83 मीटर स्क्वायर कर सकते हो. तो कर्व सरफेस एरिया क्या आ गया 99.83 मीटर स्क्वायर. सो दिस मच एरिया ऑफ कैनवस इज रिक्वायर्ड. देयरफॉर स्टेटमेंट बड़े आप लोग लिख लेना, राइट? Now the time for home assignment. Since we have completed this exercise, I really suggest you all to do all these questions again yourself and do examples 15 and 16. Thanks for watching.